had enrolled in elite grade, so I knew that managing would be possible, like alongside work. So in general, I was doing lot of work more than I was doing before 2 साल पहले. I started reaching out to people on LinkedIn जो लोग IIMs में थे या टॉप कॉलेजेस में थे, मेरे टारगेट कॉलेजेस में, एंड आस्क देम अबाउट कि कौन सा कैट कोचिंग is good. I didn't have a habit of reading. And VRC के लिए it is very important that you are able to screen through the line. First attempt में DILR में score was -1 because I had just attempted one question and वो भी गलत हो गया था. And in this attempt I got 95.2 percentile. के फेज में क्या होता है ना, वो एक रियलिटी चेक मिल जाता है, क्योंकि उसमें दिखता है कि लाइक इतने बच्चों ने मॉक दिया और आपका इतने परसेंटाइल है, तो वो क्लियरली दिख जाता है कि इतने बच्चे मेरे से आगे हैं एंड ऑल ऑफ दैट, लाइक कंपटीशन का पूरा आइडिया लग जाता है. जैसे कभी भी मेरे पास ज़्यादा टाइम है ना, तो मैं DILR लेके बैठता था, क्योंकि मेरे को पता था कि इसमें मेरे को टाइम देना ही है. तो फिर मैं ऐसे नहीं करता था कि कोई क्वेश्चन मेरे को एकदम समझ नहीं आ रहा है या मैं एकदम डाउटफुल हूँ कि दो भी ऑप्शन रिमेनिंग है, तब भी मैं मार्क नहीं करता था, क्योंकि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आपके कितने सही हो रहे हैं. 2 घंटे का हम मॉक जो देते हैं उसके एनालिसिस में, फॉर सम मॉक्स आई हैव इवन टेकन 1 day फॉर वन सेक्शन. जैसे मैं 3 दिन तक एक ही मॉक एनालाइज कर रहा हूँ. आई हैव सीन लॉट ऑफ, जैसे हाई परसेंटाइलर्स get rejected from like tier 2 colleges and get placed in tier 1 colleges. So there is no reason that the tier 2 college had to reject them. मतलब कल्चरल फिट चेक करते हैं वो लोग. First of all, a huge congratulations on securing your SPJAN convert. Yeah, thank you so much. Share a little bit about your journey so far, your background, school, college, and what were you doing before CAT? Basically, your profile. तो प्रोफाइल मतलब आई एम फ्रॉम बरहमपुर इन उड़ीसा. तो इट्स लाइक अ कोस्टल टाउन इन उड़ीसा. सो आई डिड माई स्कूलिंग देयर. 10th वहीं पे किया था, 12th ऑल्सो आई डिड देयर. देन आई वेंट टू VIT वेलोर फॉर माई इंजीनियरिंग. तो बीटेक मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया. Then I joined as a software developer in BlackRock. This was in Gurgaon. तो गुड़गांव में मैंने 2022 I passed out from VIT. Then I joined BlackRock. तो वहाँ पे I was there till May of अभी like 2025. And yeah, then I left BlackRock for SPJMR, and I am doing PGDM in information management specialization from SPJMR. Basically, the 2025-27 batch, I'm a part of it. Okay, so were you working while preparing for CAT, or you took a break and then solely focused on the preparation? No, I was working, so I didn't want to leave my job while preparing for CAT. Obviously, also because I had enrolled in elite grade, so I knew that managing would be possible, like alongside work. मुश्किल तो था काफ़ी. Actually, this was my second attempt at CAT. I'd also given in 2023. उस तब मैंने 2-3 महीना प्रिपेयर किया होगा, and that didn't go so well. But इस बार I had to give my everything. क्योंकि I knew कि like the 25 would be a right age for me to like leave the job and come to a 2-year MBA course. So I put in everything I had, like work के साथ manage करना. So yeah, I did it alongside a full-time job. I would love to know how you balance and stayed consistent with your CAT preparation, especially since you were juggling both with work and CAT preparation. So, It's a game of, I would say, priorities. Because even at workplace, like I got promoted last year. So in general, I was doing a lot of work more than I was doing before 2 साल पहले. So that was definitely something that was difficult for me. But the key, I think, there are many things. I think I started early. Even though I was a repeater, I started in April, like seriously studying for CAT. When I knew that November में exam है. And yeah, I mean, constantly I tried to make जैसे elite grade के classes होते थे रात को 10 बजे. तो that was the ideal time for me कि वापस आके I used to get some time for dinner, and then I used to sit for classes. And structure wise, I think everything was sorted, क्योंकि I didn't have to worry कि syllabus cover हो रहा है कि नहीं, ये सब हो रहा है कि नहीं. I just trusted the teachers यहाँ पे. They were very upfront about कि उन्हें कैसे plan करना है. Even when they were teaching us sequence and series, I think they started with algebra if I'm not wrong.
तो सर बोलते थे, जैसे हनी सर बोलते थे कि इसके बाद हम ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, तो हमेशा एक वो वर्चुअल प्लान दिमाग में रहता था। तो स्ट्रक्चर वाइज आई वो सॉर्टेड। माई ओनली जॉब वॉज कि मैं जो भी क्लासेस में करा रहे हैं सर, वो ढंग से करूँ, एंड उसके बाद जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वगैरह अपलोड होते थे, वो सब मैं सॉल्व करता था। एंड आई थिंक वीकेंड्स वेर अ क्रूशल पार्ट, क्योंकि वीकेंड को मैं एक टाइम पे बाहर तो जाता ही था, क्योंकि पूरा वीक इफ आई डोंट गो आउट देन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक सैटरडे संडे वेर लाइक द मोस्ट प्रेशियस पार्ट, क्योंकि दैट इज़ द टाइम जब मैं मॉक्स देता था, दैट इज़ द टाइम जब मेरे को आई यूज्ड टू गेट लाइक 3-4 घंटे एक साथ बैठ के प्रैक्टिस करना, ऑल ऑफ दैट। आई थिंक आई ऑल्सो हैड अ कपल ऑफ फ्रेंड्स हु वर डूइंग द सेम। तो वो हम लोग साथ में डिस्कस करके किसका क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेस है, किस पे काम करना है, वो सब डिस्कस कर करके पढ़ाई करते थे। एंड या इट वाज टफ। देयर हैव बीन टाइम्स जब मैं ऑफिस में लाइक ब्रेक्स में ट्रांसपोर्ट एरिया या जो हमारा सिटिंग एरिया होता है वहाँ पे जाके मैं फॉर्मूलाज रिवाइज कर रहा हूँ, एंड वो जो कॉपी होती थी फॉर्मूलाज वाली, वो लेके जाता था मैं ऑफिस। एंड इट्स नॉट लाइक आई नेग्लेक्टेड वर्क और समथिंग, इट्स जस्ट दैट जब भी मेरे को पता चलता था कि अभी थोड़ा टाइम है या मेरे पास वो मेंटल कैपेसिटी है कि मैं पढ़ाई कर सकूं, तो आई यूज टू मेक श्योर कि आई यूटिलाइज दैट टाइम। क्योंकि आई यूज टू लिव अवे फ्रॉम होम, तो आई ऑल्सो हैड टू सेव सम टाइम डेली टू लाइक स्पीक विथ माई पेरेंट्स बैक होम। तो I didn't want to neglect that. So it was a constant juggle. There were times जब मैंने पढ़ाई बहुत कम हो गए थे क्योंकि काम ज़्यादा बढ़ गया था, बट आई मेड श्योर कि आई बैलेंस इट विथ, जब काम कम है तो पढ़ाई में ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि वरना फिर कोई एक चीज़ को नेग्लेक्ट करना गलत हो जाता, क्योंकि वही ना कि आई हैड टू डू इट इस साल ही। मतलब आई डिडंट नो कि विल आई बी एबल टू डू इट, आई जस्ट न्यू कि मेरे में जितना भी है ताकत, जितना भी स्टैमिना है, मेंटल स्टैमिना, वो सब मैं लगा दूं इसी बार। तो या एंड लकीली तो नहीं, लाइक विथ लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड ऑब्वियसली अ बिट ऑफ लक, I was able to get a good CAT score, and then more importantly convert my best interview call. SPJMR was my best call, and I was able to convert it. तो कौन कौन से कॉलेजेस से आपको कॉल्स आया था और कौन कौन से कॉलेजेस का कॉल्स आपने सक्सेसफुली कन्वर्ट किए हैं अभी तक? हाँ, तो आई हैड कॉल्स फ्रॉम SPJMR, IIT बॉम्बे, IIFT, MDI गुड़गांव, एंड कैप, IM कैप कॉल्स। तो उसमें से IIT बॉम्बे आई डिडंट कन्वर्ट, एंड IIFT ऑल्सो आई, लाइक इट वाज अ वेट लिस्ट, बट इट वाज लाइक बहुत लंबा वेट लिस्ट था, तो इट वाज ऑलमोस्ट नॉन कन्वर्टेबल। MDI गुड़गांव आई डिडंट इवन अपीयर फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि तब तक SPJN का रिजल्ट आ गया था। So I got selected in the first list that SPJMR published. So then I didn't give my rest of the interviews. CAP colleges also I converted. तो कैप वाला ऐसा था कि आई गेव दैट इंटरव्यू जस्ट टू गेट अ बिट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि ऑलवेज इन द बैक ऑफ माई माइंड आई वांटेड टू जॉइन लाइक अ टियर 1 MBA कॉलेज। Since you mentioned that this was your second attempt, right? So what was या your percentile then and what is your percentile this year? So my overall percentile last year was 72 point something. I don't remember the decimal part. So it was around 72. And this year it was 97.93. That is close to 98. And I am a GEM, so general engineer male. The odds were a bit tricky for me, but yeah, things worked out at the end. So, can you tell me what specific changes did you make in your preparation that helped you to improve your score? Because from 72 to 98, it's a massive jump, right? So, what changes did you do in your preparation? I had to completely like reconfigure my strategy. First thing is that for my first attempt, I started actually really late, and तब तक syllabus cover करने का time नहीं था, तो I just did mocks. Mocks I had done seriously, but that didn't help much क्योंकि I crumbled in the test. Like जब test चल रहा था, especially DILR में, it used to be my weakest section. Like in both the attempts, like throughout the preparation, it has been something जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था। एंड या सो आई हैड क्रम्बल्ड इन DILR ओनली इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट।
So for the second attempt, what I decided is that I'll take a structured approach. I had to balance it with job, so self study wasn't something that would have worked out for me. So I actually the journey started, Elite Grid का journey started from I started reaching out to people on LinkedIn जो लोग IIMs में थे या टॉप कॉलेजेस में थे मेरे टारगेट कॉलेजेस में, एंड आस्क्ड देम अबाउट कि कौन सा कैट कोचिंग is good, especially because I wanted to do online coaching. So that's where I heard Elite Grid because lot of people recommended me कि Elite Grid अच्छा है, and that's how I ended up taking the Elite Grid course. And या उसके बाद आई स्टार्टेड अर्ली अप्रैल में, एंड देन एक चीज़ जो मैंने ध्यान रखा है कि मैं तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दूँ, लाइक VAR CDLR एंड क्वांट्स. बीइंग एन इंजीनियर, क्वांट्स वाज इनिशियली थोड़ा इजी फॉर मी, बट आई न्यू कि लॉट ऑफ इंजीनियर्स अपीयर फॉर कैट, तो कंपटीशन तो है ही. Yeah. एंड वाइल आई ऑलवेज केप्ट दैट थिंग कंसिस्टेंट कि मैं जितना टाइम कॉन्स को दे रहा हूँ उतना ही DILR और VRC को भी दे रहा हूँ. एंड आई थिंक देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे स्टार्टिंग में ही शाजर सर यूज टू शेयर आर्टिकल्स फॉर अस टू रीड. जैसे VARC के, बिकॉज मैं बचपन से कभी इतना बुक्स पढ़ा नहीं, लाइक अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक बुक्स आई डेंट हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग. एंड VARC के लिए इट इज़ वेरी important that you are able to screen through the lines and all of these things. Shazar sir had pointed out initially ही, फिर वो रोज आर्टिकल भेजते थे, तो वो पढ़ पढ़ के मतलब मेरा रीडिंग पेस इंक्रीज होने लग गया. And for DILR, I think क्योंकि it was the section I was the most scared about. To give some context, मेरा first attempt में DILR में score was -1 because I had just attempted one question and वो भी गलत हो गया था. And in this attempt, I got 95.2 percentile in My God. DILR. That just shows how much of effort I've put into just this section. क्योंकि वही है ना कि पहले भी मेरा कोई ऐसा पजल सॉल्विंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था. आई यूज टू प्ले चेस अ बिट, जैसे कि गौरव सर भी, आई थिंक वो स्टेट लेवल खेल चुके हैं, आई एम नॉट श्योर, बट आई आई नो दैट ही हैज़ अ चेस प्लेयर वाला बैकग्राउंड. एंड दो दो वे जो DILR वाले क्लासेस स्ट्रक्चर होते थे ना, जैसे ही यूज टू टारगेट कि इस क्लास में हम 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे हर क्लास में. एंड फॉर फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी रहता था, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होता था, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा और मुश्किल होता था, फिर फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा इजी रखते थे वो, ताकि हमें पूरा ऐसे मतलब ज़्यादा ही डिमोटिवेट ना हो जाए और हमें पता चले कि एक्चुअल कैट के टाइम हमें कितना प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए. एंड आई यूज टू डिलीजेंटली फॉलो जो भी क्लासेस में हो रहे थे. अगर मैं कोई क्लास मिस भी कर रहा हूँ तो फिर मैं अगले दिन देख रहा हूँ उसको, कैब में देख रहा हूँ जब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 4 दिन ऑफिस जाना पड़ता था हफ्ते में. तो कम्यूट जो होता था 1-1 घंटे का, सुबह में जा रहा हूँ फिर आ रहा हूँ, तो 2 घंटे दिन का कम्यूट ही होता था. तो उस टाइम पे ऑल्सो जैसे ऐप भी है लेट्स ग्रेड का, तो ऐप पे देख लिया मैंने वीडियोज एंड ऑल ऑफ दैट. एंड क्वांट्स के लिए व्हाट आई डिड दिस टाइम बेटर वाज कि मैं जैसे कुछ कुछ सेक्शंस पर मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, जैसे ज्योमेट्री मेरे से ज़्यादा बनता नहीं था, अलजेब्रा ज़्यादा बन जाता था, बट व्हाट आई मेड श्योर इसकी मैं सारे जो टॉपिक्स है क्वांट्स के अंदर भी उसमें इक्वल एफर्ट डालूं, क्योंकि वी नेवर नो कि कौन से चैप्टर से या कौन से टॉपिक से इजी क्वेश्चन आ जाएंगे. एंड आई डेंट वांट टू मिस आउट ऑन इजी क्वेश्चंस, क्योंकि आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करो डिफिकल्ट सॉल्व करो, आपको सेम 3 मार्क्स मिलने हैं. तो दैट इज ऑल्सो समथिंग जो हनी सर ने इनिशियली पॉइंट आउट कर दिया था कि कुछ बच्चे जो होते हैं कि कुछ आई मीन देर आर टू अप्रोचेस राइट, पीपल हु फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स ओनली एंड पीपल हु कीप वर्किंग ऑन द वीकनेस ओनली, और फिर वो स्ट्रेंथ भी खत्म हो जाता है. तो आई आई ट्राई टू बी समवेयर इन द मिडिल, जहाँ पे मतलब मैं इतना तो ध्यान रखता था कि सारे अगर इजी क्वेश्चन है तो कोई भी टॉपिक का हो और मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ. सो उससे क्या होता है कि पेस बढ़ जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है. जैसे इवेंचुअली आई वाज एबल टू सॉल्व 12 क्वेश्चंस इन क्वांट्स दिस ईयर. तो दैट वाज माय सेक्शन जिसमें लाइक आई गॉट 99.28 परसेंटाइल इन क्वांट्स जस्ट. सो दैट वाज रियली अ स्कोर बूस्टर फॉर मी, लाइक जो ओवरऑल स्कोर मेरा बूस्ट हुआ है इट वाज बिकॉज ऑफ क्वांट्स. एंड या जस्ट स्टेइंग रेगुलर, और जब जब मॉक का शेड्यूल स्टार्ट हुआ तो हमें पता था कि ये 1 महीने में क्या शेड्यूल है मॉक का, कब कौन सा मॉक होगा, उसका सॉल्यूशन कब डिस्कस होगा. तो आई ट्राई टू स्टिक टू इट.
कि मैं मतलब ऑब्वियसली मैंने सारे मॉक नहीं दे पाया मैं, क्योंकि आई वाज जगलिंग विथ वर्क, बट जैसे कुछ कुछ मॉक्स के लिए सर बोलते थे कि ये मॉक तो आपको देना ही देना है, क्योंकि इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं, या इसमें जैसे थोड़ा लेवल ऊपर है, क्योंकि पिछली बार कैट का पेपर बहुत मुश्किल आ गया था। एंड फॉर मी एटलीस्ट दिस टाइम इट इट वाज अ लिटिल बिट इजियर, नॉट वे टू इजियर, बट पीपल आर प्रेडिक्टिंग कि इस बार भी उतना ही डिफिकल्ट आएगा। तो प्रिपरेशन वैसे एडजस्ट करना था कि मुश्किल भी आ रहा है तब भी मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। सो या मोटिवेशन को मेंटेन करना वाज आल्सो टफ। तो ईजी के बारे में कैसे पता चला? कोई आपको रेकमेंड किया था या फिर आप खुद रिसर्च वगैरह करके पता लगाए थे? तो ईजी के बारे में, सो व्हेन आई डिसाइडेड कि मेरे को इस बार कैट में अच्छा करना ही है, तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर कि क्या क्या कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जाके कर पाऊँ। तो ऑनलाइन कोचिंग में आई स्टार्टेड रीचिंग आउट ऑन लिंक्डइन टू पीपल जो जैसे आईएम्स में हैं, या टॉप मेरे जो टारगेट कॉलेजेस थे उसमें जो जस्ट जो नया बैच है या एक दो साल सीनियर बैच है, उनको मैं रीच आउट करना शुरू कर दिया कि मेरे को कैट के लिए पढ़ना है और मेरे ये टारगेट कॉलेजेस है, तो कौन सा कोचिंग अच्छा रहेगा। तो बहुत लोगों ने मेरे को एलिट ग्रेड रेकमेंड किया था। सो दैट इज द बेस, तो वो देख के आई डिसाइडेड टू ट्रस्ट एलिट्स ग्रेड। क्योंकि फॉर मी ऑल्सो इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑनलाइन कोचिंग ही इनका मेन कोचिंग होना चाहिए, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट्स का क्या होता है कि ऑफलाइन इज देयर मेन एंड ऑनलाइन वाला इज जस्ट लाइक वो मतलब इट्स जस्ट अ डिवीजन ऑफ इट। तो उसमें क्या होता है कि अच्छे टीचर्स ऑफलाइन रह जाते हैं या वो सब होता है, तो आई डिडंट वांट दैट। एंड आई थिंक दैट वर्कड आउट ब्यूटीफुली फॉर मी, क्योंकि आई कन्वर्टेड माई बेस्ट कॉल। तो तो कौन से बैच में आप एनरोल किए थे और कब से आपका क्लासेस स्टार्ट हुआ था ईजी में? I think classes started in March end or April. I think I had taken the full course, like जिसमें advanced questions भी होते थे, right? Like I think it is called B2A advanced or something. So I was in that batch. I had also taken the test series pura, and I had also taken the ZAT wala course. Although I didn't do very well in ZAT, but that course really helped me, क्योंकि जैट में भी इट वाज अ सिमिलर थिंग कि लास्ट टाइम आई गॉट 98.8 परसेंटाइल इन जैट, बट आई मिस्ड आउट इन डिसीजन मेकिंग का कट ऑफ। तो दिस टाइम आई लर्न प्रैक्टिस डिसीजन मेकिंग पूरा लाइक एलिट्स ग्रिड का, जो हनी सर क्लासेस कराते थे उससे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इस बार डिसीजन मेकिंग में माई स्कोर इम्प्रूव्ड अ लॉट, बट ओवरऑल इट वाजंट सो गुड। So yeah, I was through and through elite grade only I used for my whole preparation. तो आपने जैसे कहा कि मोटिवेशन मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि इस Mhm. फेज में तो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स रहता है, तो मोटिवेशन मेंटेन करना ही पड़ता है। मॉक Yeah. टेस्ट की फेज में तो इतना फ्लक्चुएट होता है स्कोर कि डिमोटिवेटेड थोड़ा सा लग ही जाता है और क्वेश्चन आ जाते हाँ। हैं क्यों कर रहे हैं पता नहीं, क्या होगा पता नहीं। तो हाँ। उस टाइम पे खुद को मोटिवेट कैसे करते थे? um, ये थोड़ा ट्रिकी है। मोटिवेशन इन द सेंस मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैं हमेशा इक्वली मोटिवेटेड था। तो बट जो मैंने ट्राई किया ना कि मैं हमेशा अपने आप को यही बोलता था, जैसे स्पेसिफिकली मॉक्स के फेज में क्या होता है ना, वो एक रियलिटी चेक मिल जाता है, क्योंकि उसमें दिखता है कि लाइक इतने बच्चों ने मॉक दिया और आपका इतने परसेंटाइल है, तो वो क्लियरली दिख जाता है कि इतने बच्चे मेरे से आगे हैं एंड ऑल ऑफ दैट, लाइक कंपटीशन का पूरा आइडिया लग जाता है। तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता था मैं, बट द ओनली थिंग दैट आई केप्ट ऑन सेइंग इज दैट दिस इज जस्ट अ मॉक, ये मैं सीखने के लिए दे रहा हूँ, एंड कैट जो है फाइनल एग्जाम तक आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव। ये मैं अपने आप को बार बार समझाता था। एंड देर वर लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि बीच बीच में एक स्कोर अच्छा आ जाता था मेरा, तो दैट ऑल्सो हेल्प मी स्टे मोटिवेटेड। उसके बाद एक स्कोर खराब भी आ रहा है तो भी मैं एनालाइज तो पूरा कर रहा हूँ सब कुछ, बट आई जस्ट यूज टू रिमेंबर द गुड पार्ट्स, एंड जो स्कोर इतने अच्छे नहीं आए उनको भूलने का ट्राई करता था। ऑल्सो बीच बीच में जैसे क्लासेस में भी कुछ कुछ जैसे मॉक्स का सॉल्यूशन का जो क्लासेस होते थे, उसमें हनी सर, गौरव सर, सब लोग बोलते थे, शाजर सर भी बोलते थे कि इस मॉक में अगर आपका स्कोर कम आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के रखा था। एंड जस्ट स्टेइंग विद देम एंड कैरिंग दैट मोटिवेशन जो वो क्लास में देते थे, एंड थोड़ा सा मतलब आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि मैं एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हूँ। तो दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो हेल्प्ड थ्रू आउट द प्रोसेस। बाकी तो आई मतलब थोड़ा बहुत लक तो चाहिए होता है, एवरी वन हु हैज गिवन कैट वुड से द सेम।
बट या आई मीन जस्ट पुल आउट मोटिवेशन फ्रॉम वेर एवर यू कैन गेट इट फ्रॉम। मेरा तो वही स्ट्रैटेजी था। तो कैट में 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांट, बीआरसी, डीआईएलआर। तो जैसे आपने कहा कि इन तीनों सेक्शन में से डीआईएलआर आपको बहुत ज्यादा टफ लगा। या पिछले साल भी और दिस साल भी डीआईएलआर में आप थोड़ा सा चैलेंजेस फेस किए थे। तो मुझे जानना है कि आप स्टार्टिंग से कैसे प्रैक्टिस किए कि डीआईएलआर लास्ट में जाके इम्प्रूव हुआ, क्योंकि आपने कहा कि पिछले साल आपको -1 मिला था और दिस साल यू स्कोर्ड वे बेटर। तो कैसे प्रैक्टिस किया, एकदम स्क्रैच से बताना। आई थिंक जो डे वन से जो फर्स्ट क्लास होता है, उस क्लास से लेके लास्ट डे जो कैट के पहले दिन जो एक लॉन्ग सेशंस होते थे हमारे 6-8 घंटे के पूरे दिन में, जब वो पूरा स्टार्टिंग से रिवाइज कराते थे सर, तो तब तक लेके जितने भी क्वेश्चंस होते थे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते थे, आई यूज टू स्पेंड मोर टाइम इन दैट। जैसे मेरे को पता था कि ये मेरा थोड़ा वीक सेक्शन है, तो जैसे कभी भी मेरे पास ज़्यादा टाइम है ना, तो मैं डीएलआर लेके बैठता था, क्योंकि मेरे को पता था कि इसमें मेरे को टाइम देना ही है। तो दैट वाज वन थिंग आई स्ट्रिक्ट टू। जैसे पास्ट ईयर कैट के क्वेश्चंस हो गए, वो मैं बहुत सीरियसली करने लग गया। कि मैं जैसे कभी कभी क्या होता है कि आंसर सही आ गया तो पीपल मूव ऑन फ्रॉम दैट क्वेश्चन, बट मैं वो नहीं करता था। आंसर सही आए गलत आए जो भी है, आई यूज टू मेक श्योर कि आई अंडरस्टैंड द होल क्वेश्चन, और जो सॉल्यूशन है वो पूरा मैं समझूं। अनदर थिंग दैट हेल्प मी इज दैट जब मैं सॉल्व करने लग गया था ना, देन आई यूज टू ट्राई फॉर शॉर्टकट अप्रोचेस ऑल्सो, क्योंकि एग्जाम में जब हम करेंगे तो वी कांट अप्रोच एवरी क्वेश्चन जिसमें हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं अपने। तो कुछ कुछ चीज़ें जैसे ऑल्टरनेट मेथड्स होते थे, शॉर्टकट मेथड्स होते थे, वो जो गौरव सर बताते थे, आई यूज टू नोट दैट इन अ सेपरेट नोटबुक। और बेसिकली जो क्लास के 2 घंटे हो गए वो तो हो गए, बट उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा टाइम डीएलआर में डालता था, लाइक सेल्फ स्टडी के टाइम पे। तो आई यूज टू मेक श्योर कि क्लास वाले क्वेश्चन मेरे को सब कुछ समझ आ रहा है, और जो होमवर्क में क्वेश्चंस दे रहे हैं सर वो मैं कर रहा हूँ। और सेक्शनल टेस्ट्स भी जो होते थे उसमें डीएलआर मैंने काफ़ी दिया, लाइक विथ टाइमर। आई थिंक क्या होता है ना कि डीएलआर में सब लोग कर लेंगे, बट अगर आप उनको 1 घंटा 1.5 घंटा दे दोगे तो सब लोग कर लेंगे, बट विथ टाइमर डीएलआर बिकम्स वेरी वेरी ट्रिकी, क्योंकि if you can't crack the puzzle right, then you lose out on 4 or 5 questions, but if you can crack the puzzle, then एक साथ वो 4-5 क्वेश्चन का जंप मिल जाता है। तो दैट इज वेयर डीएलआर इज मोर ट्रिकी देन द रेस्ट, बाकी दोनों सेक्शंस। ओके, तो वीआरसी एंड क्वांट्स के लिए आप पढ़ाई कैसे किया था, या फिर स्ट्रैटेजी क्या था? क्योंकि वीआरसी में ऑप्शन एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये समझना ही एक ट्रिकी बात है कि कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करना है, क्योंकि दो ऑप्शंस बहुत क्लोज रहता है जहाँ पे कंफ्यूज करने का चांसेस होता है। तो उसके लिए, और क्वांट में आपने जैसे कहा कि ज्योमेट्री वाज नॉट योर फोटे, तो उसके लिए मतलब ओवरऑल आपने प्रैक्टिस कैसे की फ्रॉम बेसिक टू एडवांस? अगर आप स्ट्रेटजी बता सके पढ़ाई का, या फिर अप्रोच जो था आपका। स्टार्टिंग फ्रॉम वीआरसी, जैसे मैंने पहले बोला था कि अब जो स्टार्टिंग में रीडिंग स्पीड इंप्रूव करना होता है ना, क्योंकि वो जो व्हेन आई स्टार्टेड इन अप्रैल राइट, तो अप्रैल टू मई 1 महीना रोज शादर सर ग्रुप में आर्टिकल्स भेजते थे। एंड इनिशियली तो सिर्फ आर्टिकल होता था और समरी बनाना होता था हमें खुद का, देन आर्टिकल के साथ क्वेश्चंस भी आने लग गए थे। तो वो जो चीज़ होता है ना कि रीडिंग स्पीड इंप्रूव करो, एंड वो समझो कि ऑथर बोलना क्या चाह रहा है। जो आप क्वेश्चन एलिमिनेशन ऑप्शन एलिमिनेशन का बात कर रहे हो ना, उसमें यही होता है कि एक तो वो होता है कि जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, या हमें जो पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, हम सोच रहे हैं कि ऑथर शायद वही बोल रहा है, तो वहां पे कई बार गलती हो जाती है। मोर इम्पॉर्टेंट इज कि आप वो समझो कि ऑथर किस पर्सपेक्टिव से आ रहा है, एंड वो पूरा आर्टिकल जब आप पढ़ोगे ना स्टार्टिंग से एंड तक, विदाउट स्किपिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स और skimming a lot of things, तो तब थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ऑथर इस पर्सपेक्टिव से आ रहा है, ऑथर का ये बैकग्राउंड है, तो उनको ये बोलना होगा। एंड आई थिंक प्रैक्टिस के साथ थोड़ा इंट्यूशन भी, लाइक इंस्टिंक्ट्स भी डेवलप होते हैं, कि आपको पता चलने लगता है। एंड वन मोर थिंग आई वुड से कि वोकेबलरी इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो रीडिंग से, जब मैंने स्टार्टिंग में रीडिंग शुरू किया था तब से लेके लास्ट जो मैंने मॉक दिया था, तब तक मैं कोई भी नया वर्ड देखता था तो उसके लिए मैंने एक अलग से नोटबुक रखा था। मैं उस वर्ड को गूगल में सर्च करता था, चैट जीपीटी में सर्च करता था, जो भी मीनिंग मेरे को समझ आ जाए, वो हिंदी हो इंग्लिश हो, वॉट एवर बी द लैंग्वेज जिसमें मेरे को मीनिंग समझ आ रहा है, तो वो मैं लिख के रखता था नोटबुक में। एंड आई यूज टू रिवाइज दैट, लाइक हफ्ते में एटलीस्ट 1-2 बार आई यूज टू गो बैक,
तो लास्ट तक तो ऐसे हो गए थे कि आई हैड लाइक 400 वर्ड्स दैट यूज टू रिवाइज रेगुलरली, लाइक नए वर्ड्स विच आई डिडंट नो बिफोर आई स्टार्टेड माई कैट प्रेप। तो इट कुड बी लिटिल बिट इजियर फॉर पीपल जिनका थोड़ा मतलब इंग्लिश का बैकग्राउंड है, बिकॉज आई वॉज ए इंजीनियर, तो इतना मेरा लाइक माई स्पोकन इंग्लिश इज गुड, बट इन जनरल रीडिंग इंग्लिश और लिटरेचर का इतना मेरे को मतलब नॉलेज नहीं था। तो दैट इज ऑल्सो वन मोर थिंग दैट वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आपको क्रिटिकल वर्ड समझ में नहीं आएंगे ना, तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग फिगर आउट करने में ना थोड़ा टाइम लगता है, देन यू लूज आउट ऑन दैट टाइम। तो जैसे पैसेज में अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है देन इट इज स्टिल फाइन, बट अगर आपको ऑप्शंस में जो वर्डिंग दिया है वो समझ में ना आए ना, तो फिर ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आएगा कि ऑप्शन कहना क्या चाह रहा है। फोर्थ थिंग इज आई थिंक नेगेटिव को प्रिवेंट करना, नेगेटिव मार्किंग को, क्योंकि वीआरसी में क्या होता है ना कि इवन इफ पीपल आर नॉट कॉन्फिडेंट दे स्टिल अटेम्प्ट इट, थिंकिंग कि मैंने पैसेज पढ़ने में 10 मिनट लगाए हैं तो मेरे को 4 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है। तो दैट इज समथिंग आई लर्न द हार्ड वे, मॉक्स दे दे के इतना मैंने नेगेटिव मार्किंग झेला है मॉक्स में। सो आई मेड श्योर कि आई लर्न लाइक मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस लर्निंग। तो फिर मैं ऐसे नहीं करता था कि कोई क्वेश्चन मेरे को एकदम समझ नहीं आ रहा है या मैं एकदम डाउटफुल हूँ कि दो भी ऑप्शन रिमेनिंग है, तब भी मैं मार्क नहीं करता था, क्योंकि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आपके कितने सही हो रहे हैं। नो डाउट यू विल नीड गुड अमाउंट ऑफ correct attempts to like get good marks, but क्योंकि many of my friends also lost out on the VRC का sectional cutoff because उनके नेगेटिव ज़्यादा हो गए थे, ना कि उनके क्वेश्चंस करेक्ट नहीं हुए थे। so that is something I try to do like very very consciously। या बाकी तो कमिंग टू क्वांट्स नाउ, क्वांट्स में जैसे ज्योमेट्री वही ना कि वो भी इट कम्स विथ प्रैक्टिस आई थिंक, कि जैसे आई आई यूज टू ऑल्सो प्रैक्टिस, बट देन समटाइम्स इट्स अबाउट कि जो रश रहता है ना कि आपको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एंड वो वर्चुअली ना पता होता है सबको कि इस सेक्शन में इतने अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सबको पता होता है कि कट ऑफ कहाँ तक जाएगा, मोरलेस उतना ही रहता है हर साल, एंड सबको अपने स्ट्रेंथ्स पता होता है। तो जैसे मेरा भी वो टारगेट था कि मेरे को 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है कॉन्ट्स में, जो मतलब सॉल्व करके अटेम्प्ट करना है। गेस वर्क इज सेपरेट थिंग। तो दैट इज समथिंग आई टू ट्राई टू डू मॉक्स में भी कंसिस्टेंटली। एंड कोई भी टॉपिक हो, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि जो अगर मेरा फेवरेट टॉपिक है या मेरा सबसे हेटेड टॉपिक है, आई यूज टू ट्रीट द सेम, बोथ द टॉपिक्स द सेम प्रिपरेशन के टाइम पे। एंड मॉक्स में भी आई थिंक देर वॉज अ गुड बैलेंस, यू नो, कोई कोई मॉक में ज्योमेट्री के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होते थे, फिर दूसरे मॉक में अलजेब्रा के ज़्यादा हो जाते थे। तो जो मॉक का एनालिसिस में टाइम डालता था ना मैं, आई यूज टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट। सो क्वांट्स के लिए व्हाट आई डिड इज दैट मैंने फॉर्मूलाज के लिए अलग से एक कॉपी मेंटेन किया था स्टार्टिंग से ही, अगेन हनी सर्च इंस्ट्रक्शंस। एंड इट मेड लॉट ऑफ सेंस स्टार्टिंग में ही, क्योंकि Yeah. दैट नोट आई यूज टू कैरी टू ऑफिस, आई यूज टू यू नो कभी बीच में टाइम मिल रहा है, मेरा लंच जल्दी हो गया, कुछ ब्रेक है, तो आई यूज टू लाइक ट्राई टू गिव इट अ रीड। एंड क्योंकि बार बार पढ़ने पड़ते थे ना फॉर्मूलाज, क्योंकि नो डजेंट मैटर कि आपका मेमोरी कितना अच्छा है बुरा है, आपको सही टाइम पे सही फॉर्मूला याद आना चाहिए। एंड एक ही लाइक अब जो रेंज ऑफ फॉर्मूलाज होते थे ना, वो टॉपिक टू टॉपिक चेंज होता था, कुछ टॉपिक्स में ज़्यादा होते थे, कुछ में कम होते थे। एंड इवन इफ कोई जैसे सर बोलते थे कि कोई फॉर्मूला इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, आई यूज टू ट्राई कि मैं वो भी याद रखूं, क्योंकि वी नेवर नो कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। तो दैट वाज वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज दैट प्रिपरेशन के टाइम पे जब मैं सॉल्व करता था क्वेश्चंस, तो आई यूज टू सॉल्व इट टिल द आंसर। जैसे मेरे को लॉजिक पता चल गया तो मैं स्किप कर रहा हूँ ये नहीं करता था, मैं पूरा आंसर निकाल के मार्क करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता था। तो उससे क्या होता है ना कि जैसे कैलकुलेटर यूज करने की आदत नहीं पड़ती, वरना क्या होता है ना, अगर हम सॉल्व नहीं करते प्रैक्टिस के टाइम पे क्वेश्चंस, लाइक आंसर नहीं निकालते हैं, तो वो जो फटाफट कैलकुलेशंस होते थे, एडिशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, मतलब कहने के लिए बहुत छोटी चीज़ें हैं, बट जब हमें एग्जाम प्रेशर के टाइम पे टाइम बचाना होता है ना, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत टाइम बचाती है हमारा। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट हेल्प मी अ लॉट, कि जो फास्ट कैलकुलेशंस होते थे इसमें। बाकी तो आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बीट एनी सेक्शन, कंसिस्टेंट रहना, एंड कोई बड़ा टॉपिक हो या छोटा टॉपिक हो स्किप नहीं करना, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। So when you started giving full length mocks, were your score high or low initially?
Oh, initially my scores were low because उससे पहले क्या होता था ना, when I used to do practice questions ना, कोई टाइम लिमिट नहीं था। तो हाँ या मैं सोच पाता था, मतलब मैं अ, सही टाइम पे, जैसे कॉन्ट्स में हो गया कि सही फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए आपको। अगर आपने गलत फॉर्मूला डाल दिया तो यू विल हैव टू डू मोर नंबर ऑफ स्टेप्स टू गेट टू द सेम आंसर। या तो आपको सही फॉर्मूला मिल गया, आप 2 स्टेप में आंसर तक पहुंच जाओगे। और मतलब सारे सेक्शंस में ऐसे था कि आई टुक सम टाइम टू एडजस्ट टू जो हमारा 2 घंटे का टाइम स्लॉट था ना, 40 40 40 मिनट्स का। और जैसे कैट में तो वी कांट इवन चूज कि कौन सा सेक्शन हम पहले कर रहे हैं, कौन सा बाद में कर रहे हैं। इट इज फिक्स्ड। एंड जो मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था क्वांट्स, वो लास्ट में आता था। तो तब तक मैं ऑलरेडी काफी ड्रेन हो चुका हूँ। एंड इट डिडंट यूज टू फील लाइक माई, लाइक स्ट्रॉन्ग सेक्शन, क्योंकि तब तक काफी दिमाग चल चुका है एंड थोड़ा बैटरी ड्रेन आउट होना लग गया है। तो इनिशियली इसलिए भी स्कोर कम आते थे मेरे मॉक्स में, क्योंकि वो जो 2 घंटा एक साथ, वो भी 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठना होता था ना, दैट टुक अ वाइल लाइक टू गेन। क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ में इतना फोकस 2 घंटे बैठना, वो भी थोड़ा टाइम लगा मेरे को सीखने में। एंड इवेंचुअली आई थिंक देर वेर लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस थ्रू आउट द मॉक जर्नी ऑल्सो। बीच बीच में थोड़ा अच्छे आते थे, थोड़ा कम आते थे। एंड फिर क्या होने लग गया था ना, कि एक लिमिट से कम नहीं आता था मेरा, कि एक लिमिट में परसेंटाइल आता था एंड उससे कम नहीं आता था। दैट गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि इतना तो मैं कर ही ले रहा हूँ, एंड एग्जाम में मेरे को थोड़ा और पुश करना है। तो एवरी मॉक आई यूज टू ट्राई कि थोड़ा और पुश, थोड़ा और पुश, क्योंकि जो एनालिसिस के टाइम पे पता चलती थी चीज़ें कि यहाँ पे मैं टाइम बचा सकता था, यहाँ पे मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था। आई यूज टू ट्राई कि जैसे नेक्स्ट मॉक में मैं ये जो 10 चीज़ें मैंने गलत करी थी पिछले मॉक में, उसमें से एटलीस्ट एक दो चीज़ें इंप्रूव कर दूँ। तो वो करते करते इवेंचुअली आई थिंक थिंग्स इम्प्रूव्ड। बट मॉक स्कोर्स आर जस्ट मॉक स्कोर्स, दोज आर नॉट कि टेस्ट में आपका क्या आएगा। क्योंकि आई हैड अ मॉक में मेरा कभी आई थिंक एक दो बार ही 90 परसेंटाइल के ऊपर आया था, बट इवेंचुअली कैट में आई गॉट ऑलमोस्ट क्लोज टू 98। तो वो कॉन्फिडेंस आई थिंक हर हर स्टूडेंट को रखना चाहिए, कि मॉक को मतलब मॉक को ही सब कुछ ना मान ले। क्योंकि एग्जाम डे पे उस स्लॉट में वो 2 घंटे में आपका दिमाग कैसे चलेगा, आपके कॉम्पिटिटर्स का दिमाग कैसे चलेगा, यू कांट प्रेडिक्ट दैट। सो दैट इज ऑल्सो लाइक थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है। So can you walk us through your mock test analysis strategy? श्योर। फर्स्ट थिंग इज दैट कि टाइम मत देखो। क्योंकि 2 घंटे का हम मॉक जो देते हैं उसके एनालिसिस में, फॉर सम मॉक्स आई हैव इवन टेकन 1 डे फॉर 1 सेक्शन। जैसे मैं 3 दिन तक एक ही मॉक एनालाइज कर रहा हूँ। क्योंकि अब एक तो कुछ कुछ मॉक्स का लेवल थोड़ा हाई रहता था, एंड देर यूज टू बी लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स। जैसे इट कुड बी कि मैं कॉन्सेप्चुअली गलत हूँ, मैंने गलत क्वेश्चंस पिक किए हैं, या अगर मैंने सही क्वेश्चन पिक भी किया है तो मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज क्यों हो रहा था ऑप्शंस में। आई यूज टू एनालाइज, लाइक अपार्ट फ्रॉम जो सर क्लास में कराते थे, आई यूज टू एनालाइज कि मैं कहाँ पे गलत हो रहा हूँ। क्योंकि फॉर सम पार्ट्स जो सर बोलते थे कि यहाँ पे गलती हो सकती है, मेरा वहाँ पे गलती नहीं होता था। बट कुछ बहुत सारी सिली चीज़ों में गलती होता था। तो दोज आर द थिंग्स जिस पे मेरे को खुद से काम करना था। एंड दोज आर द थिंग्स दैट हैड टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ एंड फिक्स माई सेल्फ। तो main strategy is that never check time when you're analyzing mocks. Second thing is that कि जो क्वेश्चन सही हो रहे वो तो ठीक है, बट जो गलत हो रहे क्वेश्चंस उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। क्योंकि समटाइम्स हमारी टेंडेंसी यही रहती है ना, कि कुछ गलत हो गया या कुछ हो गया तो हम उसके बारे में सोचते नहीं है। बट इसको लर्निंग की तरह लेंगे ना अगर हम मॉक को, तो फिर हम वो मतलब वो चीज़ नहीं होगा। तो कोई भी क्वेश्चन गलत होता था मैं उसको ज़्यादा टाइम देता था। एंड आई यूज टू थिंक एवरीथिंग कि ये क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। अगर मेरे को करना चाहिए था तो मेरे को कितना टाइम लगाना चाहिए था। और अगर मैंने इतना टाइम लगा दिया और उसके बाद भी मेरे को नहीं समझ आ रहा है, तो मेरे को अटेम्प्ट मतलब गेस वर्क करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए। सो आई यूज टू एनालाइज ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड प्रोग्रेसिवली फिर आई टू रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। क्योंकि स्टार्टिंग बहुत बच्चों का ना, स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेशन होता है जब मॉक्स वो देना Mhm. शुरू करते हैं। क्योंकि देर आर लॉट ऑफ पीपल डूइंग इट, एंड फिर वो पूरा कैट वाला सिमुलेशन वाला फीलिंग आता है कि 2 घंटे हैं, 40 40 मिनट के एक एक सेक्शन दर 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 चल रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। बट टू कीप दैट वर्क एथिक गोइंग,
थ्रू आउट द 3-4 months ऑफ मॉक टेस्ट जो देते हैं हम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड या डाउट्स जब भी आ रहे तो आई यूज टू आस्क इट ऑन द चैनल, आई यूज टू आस्क इट ऑन व्हाट्सएप, या कैसे भी करके डाउट सॉल्व कर आता था मैं. गूगल कर लो, नोट्स में देख लो, कुछ भी है. एनी डाउट, एनी सिली थिंग कैन रिपीट इन सम अदर मॉक ऑल्सो. तो आई यूज टू ट्राई कि मैं थोड़े कम मॉक्स दूं, बट जो भी मैं दे रहा हूँ मॉक्स को, उनको मैं इतना अच्छे से एनालाइज करूँ कि मैं सारे क्वेश्चंस का सारा मतलब पूरा ही जूस निकाल पाऊँ उसका. क्योंकि दैट इज द होल पॉइंट कि हम 2 घंटा उसमें जो स्पेंड कर रहे हैं, जितना हम कंसंट्रेशन दे रहे हैं, उसका पूरा लाइक जस्टिफाई करना पड़ेगा हमें एनालिसिस के टाइम पे. एंड या इट इट आई थिंक वर्क एथिक अगेन वाज इम्पोर्टेंट. कि सब प्रोसेस सबको पता है, बट कंसिस्टेंटली बहुत कम ही लोग कर पाते हैं. सो ट्राई टू बी इन दोज कम लोग. तो आप रिवाइज कैसे करते थे कैट के 30 to 45 days पहले? Actually, मैंने I knowingly took some days off like before cat. ऐसा नहीं है कि मतलब आई हैड सेव्ड दोज अमाउंट ऑफ लीव्स. एकदम साल के स्टार्टिंग से मैंने कोई छुट्टी नहीं लिया था, थिंकिंग कि क्योंकि वो ट्रिकी इसलिए भी है क्योंकि वो दिवाली टाइम के अराउंड ही आता है कैट, और पूरा फेस्टिविटीज वाला माहौल रहता है सब. मतलब घर में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, क्योंकि आप छुट्टी ले भी रहे हो तब भी पढ़ाई करने बैठना मुश्किल हो जाता था. तो वो सब के चक्कर में आई थिंक वन थिंग दैट आई डिड इज कि मॉक जो मैंने फर्स्ट मॉक दिया था, उससे लेके जो मैं लास्ट जो भी मॉक दिया, और जो जो क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लगते थे मैं वो बुक मार्क करके रखता था. जैसे लेट्स ग्रेड ऐप पे यू कैन बुक मार्क क्वेश्चंस, तो वो बुक मार्क क्वेश्चन से रिवीजन करना चालू किया मैंने. तो उससे क्या हुआ ना कि एकदम जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करे थे वो सब मेरे रिवाइज हो गए दोबारा. तो दैट वाज वन थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज कि मैं जो टॉपिक्स, सो दैट लास्ट 30 to 45 days इज द टाइम व्हेन यू slightly focus more on the strengths and not on the weaknesses, क्योंकि that is where we can push the score a bit. क्योंकि हर सेक्शन में अगर आपको 90 90 90 भी आ गया तब भी ओवरऑल स्कोर उतना अच्छा नहीं बनेगा. एवरी आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव दिस वन, एटलीस्ट वन सेक्शन. कुछ बच्चों का तीनों सेक्शन में बहुत अच्छा होता है, बट लॉट ऑफ पीपल हैव एटलीस्ट वन सेक्शन जिसमें स्कोर एकदम पुश होता है. तो वो अपना आइडेंटिफाई करना, एंड उसमें ट्राई टू सॉल्व, लाइक एग्जाम में जो डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन आते हैं उससे एक नॉच ऊपर के डिफिकल्टी के क्वेश्चंस. तो उससे क्या होता है ना कि थोड़ा और हाथ खुलने लग जाता है, थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई डिड. So, did you appear for any other exam apart from CAT? Yeah, so I had given NMAT, SNAP, and ZAT also. But I scored the best in CAT. But हाँ, NMAT में भी जैसे मेरे को इंटरव्यू कॉल तो आ गया था, but I didn't want to pursue NM में, so I didn't go ahead. तो आपका स्कोर या फिर परसेंटाइल क्या था उमेश? ओमेट्स में जैसे एनमैट में आई थिंक आई स्कोर्ड अराउंड 252, and snap and chat both percentiles were around higher 80s, like 87 88 ऐसे कुछ था percentile. CAT and OMITS are a bit different. The strategy, the exam pattern is little bit different, right? So how did you prepare for OMITS? फॉर ओमेट्स आई थिंक सिलेबस तो सेम ही होता है मोर और लेस, अनलेस जैट है तो उसमें डिसीजन मेकिंग थोड़ा अलग से हाँ, पढ़ना पड़ता है. बट सिलेबस वाइज आई आई डोंट थिंक आई डिड एनीथिंग सेपरेटली, बट जो एग्जाम का पैटर्न होता है उस हिसाब से थोड़ा अडेप्ट करना पड़ता है. जैसे लुकिंग एट, जैसे मैं स्नैप देने जा रहा हूँ तो उसका एग्जाम पैटर्न देख के आई यूज टू, द ओनली थिंग दैट आई चेंज इज, मैं ये डिसाइड करके जाता था कि मैं पर क्वेश्चन कितना मैक्सिमम टाइम दूंगा डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम. दैट वाज द ओनली थिंग दैट यूज टू चेंज, क्योंकि कैट में थोड़ा ज़्यादा टाइम आप दे सकते हो क्योंकि क्वेश्चंस कुछ कुछ थोड़े लेंदी होते हैं. तो दैट इज द ओनली चेंज एंड एडेप्टेशन आई डिड. जो डीएम सेक्शंस होते हैं जैट में, तो उन सेक्शन के लिए आप पढ़ाई कैसे किए? एंड इन मैट एंड स्नैप में भी कुछ रीजनिंग का एक्स्ट्रा कुछ रहता है, ऑल्सो क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स या कुछ कुछ टॉपिक्स रहते हैं, तो उसके लिए आप पढ़ाई कैसे किए थे? आई थिंक इसके लिए तो बेस्ट गोल्ड मैन इसकी पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखो. जैसे जैट के तो इट्स प्रेटी पब्लिकली अवेलेबल उनके वेबसाइट पे ही. तो हनी सर भी वही बोलते थे कि उन क्वेश्चंस को मतलब सॉल्विंग इज वन थिंग, बट एनालाइजिंग देम एंड स्पेंडिंग टाइम ऑन इट एंड थिंकिंग कि ये ऑप्शन क्यों पिक हुआ इस क्वेश्चन में,
तो वो ध्यान रखना, वो सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक ओमेट्स के लिए, इफ़ यू प्रिपेयर वेरी थॉरोली फॉर कैट, देन ओमेट्स में जस्ट डूइंग द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड लाइक अडेप्टिंग टू द टेस्ट का जो भी स्ट्रक्चर है, दैट इज द ओनली थिंग आई थिंक। Okay, so coming back to the interview stage directly, then share how you prepared for your personal interview. What kind of resources did you follow? Did you take any mock interviews or not? Overall, how did you prepare? Yeah, so for interviews, I think the most important thing is to be able to handle the HR questions. जो questions आते हैं जैसे वाई MBA, और आप इंजीनियर होके अभी MBA क्यों करना चाह रहे हो, आपका सो एंड सो फील्ड में वर्क एक्स है बट अभी आप MBA में क्यों आना चाह रहे हो, एंड थिंग्स लाइक जिस कॉलेज के लिए आप इंटरव्यू देने चाहते हो, व्हाट द कॉलेज इज लुकिंग फॉर इज लाइक अ कल्चरल फिट। क्योंकि उनको पता है कि कोई बंदा अगर इंटरव्यू देने आ रहा है तो ही इज केपेबल इनफ, क्योंकि उसका अच्छा परसेंटाइल है, उसका प्रोफाइल अच्छा है, एवरीथिंग दे ऑलरेडी नो। व्हाट दे आर ट्राइंग टू चेक इज कि आप कल्चरली किस कॉलेज के लिए फिट हो। क्योंकि आई हैव सीन लॉट ऑफ जैसे हाई परसेंटाइलर्स get rejected from like tier 2 colleges and get placed in tier 1 colleges, so there is no reason that the tier 2 college had to reject them। मतलब कल्चरल फिट चेक करते हैं वो लोग। And preparation wise, I think I did a lot of mock interviews. And apart from that, I spent a good amount of time HR questions में। और इंग्लिश बोलने का जो आदत है ना, वो थोड़ा खुद से ज़्यादा डालने का ट्राई किया मैंने, लाइक स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड प्रैक्टिसिंग माई टेल मी अबाउट योर सेल्फ वाला जो प्रिपेयर किया था मैंने, रिफाइनिंग दैट। जैसे एक बार लिख लो एंड फिर कुछ जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हो रियलाइज कि अच्छा इसमें मैं कुछ और भी ऐड कर सकता था, देन going back, changing that one bit, refining it, and practicing it again and again. That is important. Also, current affairs was very important क्योंकि आई वो टाइम होता है जहाँ पे इंटरव्यूज के टाइम पे इंडिया का बजट अनाउंस होता है। दिस टाइम देयर वाज लॉट ऑफ ट्रम्प का न्यूज़ ऑल्सो, because of everything that he was doing even before he came to power, like after he got elected he started doing things। तो वो सब के बारे में इंफॉर्मेशन रखना, क्योंकि कुछ कुछ जीडीज में दे गिव लाइक सिचुएशनल या करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक्स, तो इट इज ऑलवेज हेल्पफुल टू नो अ बिट अबाउट देम। Okay, so how did it feel finally when you received the convert? Yeah, so SPGen was the first interview I gave, like लाइफ में पहला फिजिकल इंटरव्यू था मेरा ये। एंड रिजल्ट्स के हिसाब से भी एसपी वाज द फर्स्ट कॉलेज, आई थिंक एटलीस्ट आउट ऑफ ऑल द इंटरव्यूज दैट आई गिव टू लाइक पब्लिश द रिजल्ट्स, it was surreal। I mean it was nothing like मतलब ऑनेस्टली मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था। आई हैड क्वालिफाइड फॉर GI 2। जैसे एसपी में देर आर 2 ग्रुप इंटरव्यूज और फर्स्ट राउंड के बाद एलिमिनेशन होता है, तो आई हैड क्वालिफाइड फॉर GI 2 भी इट वाज रिलेटिवली गुड, बट अदर पीपल हु वेर इन GI 2 वेर इक्वली गुड। क्योंकि GI 1 के बाद जो बचे हुए लोग रहते हैं ना, उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अभी कोई एलिमिनेशन और है नहीं। तो आई हैड सम डाउट अबाउट दैट। एंड या जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, जब मैंने पोर्टल में लॉग इन करके वो पहला कंग्रेचुलेशंस का मैसेज देखा, इट वाज नथिंग लाइक आई हैड एवर एक्सपीरियंस्ड। क्योंकि इट इज द माय बेस्ट अचीवमेंट एकेडमिकली। आई ट्राइड टू, मतलब जेई के टाइम पे आई डिडंट डू सो वेल, ऑल्दो उस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छा किया था, बट इवेंचुअली एग्जाम में अच्छा नहीं हो पाया था। तो वो स्टिल अंदर से एक रह गया था कि एक टॉप मतलब tier 1 कॉलेज में पढ़ना है मेरे को करके। सो इट वाज रियली रियली अमेजिंग, एंड स्पेशली क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आया था, तो इट वाज इवन मोर एंजॉयबल फॉर मी। What was your overall experience with Elite's Grade? Overall experience, I think it was very good. It was much more than what I had expected, seriously, because it was something new. I hadn't heard about Elite Gate before I had actually enrolled, but I always had faith in it because of the people that had interacted with before। और सब लोग जो मतलब बहुत सारे लोग जो टॉप IIMs में हैं, SP जैन में है, XLRI में है, बहुत लोगों ने रिकमेंड किया था कि वो खुद एलिट गेट से पढ़ के गए।
So that is why I trusted it. And overall experience, I think it was very very good. Like all the जैसे शाजर सर हो गए, गौरव सर हो गए, हनी सर हो गए, all of them are very very strong in their particular subjects. Even Dipanshi ma'am joined in, I think mocks के time पे she used to take the like the analysis वाले sessions, and that was वेरी गुड, क्योंकि उनका एक अलग थोड़ा थॉट प्रोसेस होता था टू सॉल्व द पैसेजेस. दैट आल्सो हेल्प मी अ बिट, क्योंकि आई लर्न सम मोर ट्रिक्स फ्रॉम हर. एंड इट वाज रियली ऑसम, क्योंकि डाउट्स भी जो मेरे रहते थे ना कोई कोई सेशन में, बाद में देखता था, क्योंकि काम आ गया, रात को मीटिंग आ गया, तो मैं सेशन अटेंड नहीं कर पाया. तो वो जो कम्युनिटी चैट पे डाउट्स भी मेरे एक दो दिन में रिजॉल्व हो जाते थे. So that eventually everything added up, and it was very good experience for me. If you could give one important piece of advice to the CAT aspirants to help them improve their score, then what would it be? For me, like if I have to give one piece of advice, it would be कि तीनों सेक्शंस को आप इक्वली इम्पोर्टेंस दें. क्योंकि यू नेवर नो कि एग्जाम डे पे आपके किस सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स आएंगे. यस, इट डज हैपन विथ मोस्ट ऑफ द पीपल कि कोई एक सेक्शन आपका ओवरऑल स्कोर को बहुत ज़्यादा बूस्ट देता है, एंड यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट. एंड ईच सेक्शन में सारे टॉपिक्स कवर करना, कोई टॉपिक्स स्किप ना करना, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. That's such a valuable advice. Thank you so much for sharing your amazing journey with us. Your journey is a proof that with the right mindset, planning, and consistency, even the toughest goal like CAT exam can be achieved. Once again, a huge congratulations on securing a spot at SP Jan. Wishing you all the very best as you start this exciting new chapter. Thank you so much for joining. Thank you.